Okay, today we will see the mixer and oscillator, the quiz frequency converter. It is a non-linear resistance having two sets of input terminals and one set of output terminal. Okay, so today we are studying the mixer and oscillator. Mixer has two sets of input and only single output. The output of mixer is input Fi. Okay, its output circuit is tuned to Fi, that is input frequency. Conversion of transconduction input to a mixer is received signal voltage which has a magnitude of Vs and frequency Fs. The input is usually a current component of If, that is F0 Fs, which will have magnitude that is proportional to Vs. Thus we defined a constant of proportionality called conversion transconductance, Gc equal to If upon Vs. So today we are seeing this mixer and oscillator. So condition of mixing: when GM of mixer is raised with local oscillator, the GM means that is the transconductance. What is GM? Transconductance is raised with the local oscillator. Okay, what is local oscillator? Local oscillator produce a high frequency which is greater than the received frequency. This we have seen in the when we have studied the block diagram of communication super heterodyne receiver. Okay, so as per our previous discussion, I have told you that today we will in the previous lecture we have seen the RF amplifier. Today we are studying the mixer and oscillator circuit. So there are two types of mixer. One is the what is the function of the mixer? Function of the mixer is to produce the difference of the frequency between local oscillator and the received frequency, that is F0 minus Fs, where F0 is the local oscillator frequency and Fs is the output frequency. Okay, so what are the types of mixer? So there are two types of mixer: separately excited mixer and self excited mixer. So the separately excited mixer is what the diagram is as shown. So here you can see there are two types, means two circuits. One is the one circuit is the oscillator circuit, which is by the transistor T2, whereas this is one FET. Okay, so here one device acts as a mixer and other supplies the necessary oscillations. So this is known as the separately excited mixer. Separately excited mixer has one device acts as a mixer and other device acts as a necessary oscillation. The BJT TA forms Hartley oscillator. C. So BJT means bipolar junction transistor is performing forms the Hartley oscillator. Hartley oscillator you have studied in the electronics devices and circuits. It oscillates with F0, that is a local frequency, that is the higher frequency F0. FET T1 is a mixer. So T1 is the FET, T2 is the BJT. So T2 acts as a Hartley oscillator, okay, whereas T1 acts as a mixer. So FET T1 mixer whose gate fed with the output of the oscillator. The output of the local oscillator vary GM of FET. GM means transconductance of the FET, resulting in the generation of the IF, that is the intermediate frequency. The output of local oscillator vary GM and it will produce the IF. The output is taken through double tuned transformer. Okay, so this is the circuit diagram. So circuit diagram, you can see T2 is acting as a T2 is acting as a T2 is acting as a transformer, not transformer. T2 is acting as a mixer
but whereas T2 is acting as a Hartley oscillator, whereas T1 acts as a FET. Okay, so these two circuits are ganged together by means of the capacitor, and one is the FET, mixer is the FET, and T2 is the BJT. Okay, and and so this is the one type of mixer, that is the separately excited mixer. So separately excited mixer is what is the basic principle of the separately excited mixer? Separately excited mixer is formed with the one part of the circuit provides the oscillations, and the other part of the circuit provides the mixing. So here mixing is provided by the FET circuit, whereas the oscillation is provided by the BJT circuit, that is T2. T2 is uh, T2 is what the BJT, where it provides excitation with the help of oscillations, and whereas the FET provides the necessary mixing. So here RF signal is input to the FET, where the transconductance is varied of the mixer, and we will get the difference of the frequency at output of the FET. So this output is taken from the double tuned transformer. Okay, and VCC is given to both FET and BJT. Okay, so uh, this is very important diagram. At least you should practice the diagram 2 to 3 times, then and then you will get the concept. So here so this is the separately excited mixer. Separately name is given because oscillations is produced by the one part of the circuit, where and the secondly mixing is done by the other part of the circuit. So that gives us separately excited mixer. Okay, now we will go for the self excited mixer. So in the self excited BJT mixer, see here, in this mixer the function of the mixer and local oscillator are combined in one circuit. Okay, so इसमें क्या हो रहा है, अब सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर में सेल्फ एक्साइटेड नेम इट सेल्फ इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यहाँ पे ऑसिलेशंस भी प्रोड्यूस एक ही सर्किट कर रहा है और सेम सर्किट मिक्सिंग भी कर रहा है. दैट्स वाई द नेम गिवन एज द सेल्फ एक्साइटेड मिक्सिंग. So here in this mixer, the function of the mixer and the local oscillator are combined in the one draft. The circuit oscillates and the transconductance of a transistor is varied in a nonlinear manner at local oscillator rate. Okay, this variable G means transconductance used for transistor to amplify incoming RF signal. So uh, here oscillations is produced by the transistor circuit, as well as mixing is done by the transistor circuit. So that's why the name given as the self excited mixer, because only there is a one single circuit is acting as a both, it is doing both operations. One operation is the mixing, another operation is the oscillations. So that completes our part of the mixer, that is self excited mixer and separately excited mixer. So now we will go for the intermediate frequency amplifier. Intermediate frequency amplifier, it is the fixed frequency amplifier. The important function of the IF amplifier is to amplify only tuned frequency signal and reject adjacent unwanted energy. Most of the receiver gain is provided by the IF amplifier. To obtain required specific gain, cascade amplifiers are applied. So now we are moving forward. So intermediate frequency is F0 minus Fs. So now this is the lower frequency than the incoming frequency, that is the received frequency. But now what happens, this signal, that is Fs means जो सिग्नल रिसीवर ने रिसीव किया है, और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकल ऑसिलेटर.
तो ये दोनों में डिफरेंस प्रोड्यूस करने का काम एक तो सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर होगा या फिर सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर होगा। उसके पहले हमने देखा आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ एम्पलीफायर ये सिंपल एम्पलीफायर होता है एंड दैट इज़ डन बाय द फेट। ओके, सो फेट आरएफ एम्पलीफायर का काम क्या है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। मिक्सर का काम है F0 माइनस FS प्रोड्यूस करना। उसमें भी दो टाइप है, सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर एंड सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर। ओके, बट नाउ there is need to amplify this intermediate frequency because what is happening, why you are what is happening here, because now this signal is travel from the long distance. It has coming out of the RF amplifier as well as the mixer as well as the local oscillator. Now there is need to have its boosting again, so that's why the intermediate frequency amplifiers are applied. तो इसमें क्या हो रहा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में कि ये अब F0 माइनस FS सिग्नल को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे एक पर्टिकुलर लेवल पे, इसीलिए वो क्या दिया है, IF एम्पलीफायर दिया है। ओके, सो IF एम्पलीफायर का काम क्या है कि इनकमिंग F0 माइनस FS जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या करना, उसको बूस्ट करना। ओके, सो नाउ so what are the advantages of the RF amplifier? What are the advantages of the amplifier? Better coupling of receiver to the antenna, prevention of the spurious frequencies, sorry ये रिपीट हो रहा है। सो IF एम्पलीफायर का सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये पेज नंबर 136 पे दिया है। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम बताने वाला हूँ। ये कुछ भी नहीं है। IF एम्पलीफायर क्या है, IF एम्पलीफायर इज जस्ट लाइक अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर मीन्स एक एम्पलीफायर का कैस्केडिंग दूसरे के साथ किया है, दूसरे का कैस्केडिंग तीसरे के साथ किया है। कैस्केडिंग आपको पता है, कैस्केडिंग यानी क्या होता है, आउटपुट ऑफ द वन एम्पलीफायर एक्ट्स एज अ इनपुट टू द सेकंड एम्पलीफायर। Similarly, output of the second amplifier will act as an input to the input to the third amplifier and so on. तो IF एम्पलीफायर ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। मल्टी स्टेजिंग का एडवांटेज क्या है कि मल्टी स्टेजिंग की वजह से क्या होता है, गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज एट द हायर साइड। मीन्स समझो अगर तीन स्टेजेस है A1 A2 A3 तीनों का गेन है, सो A1 multiplied by A2 multiplied by A3, that is the gain of the amplifier. Okay, so this is the intermediate frequency amplifier, that is nothing but the IF amplifier. तो इसका डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, अभी टेक्स्ट बुक में दिया है लेकिन अभी नोट्स में से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस IF एम्पलीफायर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो हियर ये तो फिर से गलती से स्कैन हो गया, फिर से वो पेज नोट्स का। नाउ नेक्स्ट इज़ द AM डिटेक्टर। अभी हम लास्ट स्टेज में आ रहे हैं। देखो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने RF एम्पलीफायर के डिटेल्स देखे, बाद में हमने मिक्सर के डिटेल्स देखे, लोकल ऑसिलेटर के डिटेल्स देखे, बाद में हमने देखा कि IF एम्पलीफायर कैसे होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि AG डिटेक्शन कैसे होता है। डिटेक्शन यानी डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है। डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है डीमॉड्यूलेशन में, जैसे कि मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है प्रीवियस, यानी स्टार्टिंग में ही दिया था मैंने ये, कि जब हम अमरावती से नागपुर ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ अदर सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम अमरावती, तो वहाँ पे जाने के बाद हम हमारा व्हीकल छोड़ जाते हैं और डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं हमारे, लेकिन हमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो जो व्हीकल छोड़ने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नथिंग बट द डिपार्चर, उसको डिपार्चर बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में उसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। अभी हम क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमने सिग्नल को मॉड्यूलेशन किया था, और कौन से सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम मॉड्यूलेशन करते हैं, उस सिग्नल को हमने मॉड्यूलेशन करके कैरियर पे डाल के उसको ट्रैवल करने लगा था। कहाँ से, ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक।
लेकिन अब रिसीवर में क्या होने वाला है, ये सारा सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल से हमें हमारा ओरिजिनल सिग्नल वापस निकालना है, यानी वो कैरियर को छोड़ देना है जिसने उस सिग्नल को ट्रांसमीटर से उठा के रिसीवर तक जिसने लाया। अब उसका काम ख़त्म हो गया, अब उसको छोड़ना है, किसको, कैरियर को छोड़ना है, और हमें हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल वापस चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सिग्नल वापस निकालने के लिए हम करेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो अब डीमॉड्यूलेशन का मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ। तो डीमॉड्यूलेशन में होता क्या है, ये आपके स्क्रीन पे है। इट्स एक्सेप्ट्स अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी इट एक्सेप्ट्स अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक्सेप्ट किया इसने। इट रिकवर्स ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग, दैट इज इंफॉर्मेशन सिग्नल। ओके, सो इसका काम क्या है डीमॉड्यूलेशन का, इंफॉर्मेशन सिग्नल यानी जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था उसको बाहर निकालना, कहाँ से, उसके इंफॉर्मेशन सिग्नल को बाहर निकालना। सो डायोड इज़ बाय फॉरमोस्ट कॉमन डिवाइस यूज फॉर द एएम डीमॉड्यूलेशन। तो डायोड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डीमॉड्यूलेशन के लिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है वर्किंग का डीमॉड्यूलेशन का। इट इज़ द सिंपल डायोड डिटेक्टर। द डायोड इज कनेक्टेड सो एज टू कंडक्ट ओनली फॉर अपर साइड बैंड ऑफ एएम सिग्नल। समझ में आ रहा है क्या कि डायोड कैसे कनेक्ट किया है, कि जो अपर साइड बैंड है, अभी आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं वही बातें फिर से नहीं बताऊंगा, ये मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अपर साइड बैंड क्या होता है, लोअर साइड बैंड क्या होता है, कैरियर सिग्नल क्या होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। सो ये जो डायोड डी है ये कैसे कनेक्ट किया है, सो एज टू कंडक्ट फॉर द upper side band of the AM signal. Therefore, diode D will be reverse biased for the lower side band, and thus lower side band is removed from the AM signal. तो पहले तो lower side band निकाल दिया इसने। The HF carrier signal is filter out by the C। ये देखो ये C निकाला है, कहाँ पे C है, अभी आपको बताता रहा हूँ by using this pointer। ये देखो ये जो C है यहाँ का, ये सी जो है मैंने रेड सर्कल किया है अभी, वो सी क्या करेगा, कैरियर सिग्नल को निकाल देगा। क्यों, क्योंकि सिंपल है, व्हाट इज एक्सी, एक्सी इज 1/2π/c, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी हाँ यस, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना एक्सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी जैसे आएगी तो ये जो कैपेसिटर है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। और ये बेसिक प्रिंसिपल है, कोई भी वोल्टेज का, कोई भी करंट का, एनी करंट एनी वोल्टेज ऑलवेज फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ। और जो फ्रीक्वेंसी आई है वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट ही आने वाला है, तो वो भी क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ देखेगा। कौन सा है लो रेजिस्टेंस पाथ, हाई फ्रीक्वेंसी को, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर में से जो लो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो बाईपास हो जाएगा। बट वेयर एज वेन द फ्रीक्वेंसी इज लो, लो फ्रीक्वेंसी कौन से सिग्नल का है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल का, तो वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये जो कैपेसिटर है ये हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कैपेसिटर से वो बाईपास नहीं हो जाएगा, तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, अक्रॉस रजिस्टर आर, अक्रॉस रजिस्टर आर। तो ये कैपेसिटर का काम क्या है, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को बाईपास कर देगा। और ये रेजिस्टेंस जो है आर, इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, इधर से अगर हाई फ्रीक्वेंसी चली गई तो आर आर में क्या बचेगा, लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, डायोड डीमॉड्यूलेटर, दैट इज एएम डीमॉड्यूलेटर। So but there is a what, though the circuit is simple but it has some disadvantage such as ripple present at the output V0. To overcome the drawbacks, practical diode detectors are used. So this is the what,
Okay, so I will erase this. Hope so you are getting the concept. Okay, so डीमॉड्यूलेशन में क्या क्या लगाया है, एक डायोड डी लगाया है, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। एक डायोड डी लगाया है और उसके साथ क्या हो रहा है, ये डायोड डी कैसे कनेक्ट किया है, रिवर्स बायस है, कौन से साइड बैंड के लिए, लोअर साइड बैंड के लिए। तो लोअर साइड बैंड के लिए इसको रिवर्स बायस कर दिया, तो लोअर साइड बैंड तो इससे पास नहीं होगा, तो अपर साइड बैंड हमें मिल जाएगा। अब लेकिन अपर साइड बैंड में भी हमें एक इशू है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं चाहिए क्योंकि वो कैरियर था। तो कैरियर को बाईपास करने के लिए कैपेसिटर लगा दिया। क्या हो गया यहाँ पे, कैरियर को बाईपास करने के लिए कैपेसिटर लगा दिया, और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए भी क्या लगा दिया, कैपेसिटर, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर में से पास हो जाएगा। बचा कौन सा सिग्नल फिर, ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट एक्ट होता है किसको, डीसी को, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी को भी ये कैपेसिटर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन लो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसको लो फ्रीक्वेंसी लो पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ, रेजिस्टर आर। तो इसके अक्रॉस हमें हमारा जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ द डायोड डिटेक्टर। और आज हमने देखा, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें आउटपुट में रिपल्स होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें ये प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर पढ़ना है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम हमारा पार्ट पहले रिवाइज कर लेंगे। ओके, क्या क्या देखा हमने आज, सबसे पहले तो मिक्सर एंड ऑसिलेटर देखा। मिक्सर एंड ऑसिलेटर का काम क्या है, ऑसिलेटर का काम क्या है, ऑसिलेटर का काम है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस करना। मिक्सर का काम क्या है, आउटपुट में डिफरेंस ऑफ द इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करना, दैट इज F0 माइनस FS। F0 क्या है, यानी सिंपल मिक्सर का फंक्शन क्या है या एप्लीकेशन क्या है कि मिक्सर ने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी चाहिए। व्हाट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, FI इक्वल्स टू F0 माइनस FS। तो F0 माइनस FS FI प्रोड्यूस करेगा, सॉरी FI मीन्स F0 माइनस FS, ये काम है मिक्सर का। और लोकल ऑसिलेटर का काम क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल F0 जनरेट करना। तो दो टाइप के मिक्सर हमने पढ़े, एक तो सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर, उसके बाद सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर। सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर में क्या होता है कि ऑसिलेटर और मिक्सर ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं, यानी एक सर्किट का पार्ट ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे T2 जो दिखा है, T2 यानी बीजेटी ट्रांजिस्टर का सर्किट, ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा ऑसिलेटर फॉर्म कर रहा है, ये हार्टली ऑसिलेटर फॉर्म कर रहा है। वेयर एज मिक्सर जो है वो फेट से बनाया है। फेट का काम क्या है कि F0 माइनस FS प्रोड्यूस करना। F0 मिक्सर को कौन देगा, ये ऑसिलेटर देगा T2, वेयर RF इन में यानी FS है, तो आउटपुट में हमें FI मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट द सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर। और हमने सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर भी देखा, ये आपके सामने सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर है कि ये इसमें ऑसिलेटर और मिक्सिंग दोनों भी साथ साथ चलता है। ओके, सो दिस इज़ द सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर। उसके बाद हमने देखा, यानी ये भी वही प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ F0 माइनस FS, दैट इज़ intermediate frequency, but now here oscillations and mixer are not separate, they are combined together, means जो 2 in 1 है ये, दिस सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर इज 2 in 1, यानी ऑसिलेटर्स भी यही प्रोड्यूस करेगा और मिक्सिंग भी यही करेगा। लेकिन जो सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर है उसमें क्या है, ऑसिलेटर भी अलग सर्किट ने प्रोड्यूस किया और मिक्सिंग भी डिफरेंट सर्किट करने वाला है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई F0 माइनस FS, इसको हमें एक्साइट भी करना पड़ेगा, तो सॉरी नॉट एक्साइट, इसको हमें बूस्ट भी करना पड़ेगा। तो बूस्टिंग का काम ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर करता है, जो कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है और जिसका मैं सर्किट डायग्राम आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। ओके, उसके बाद हमने देखा कि डायोड डिटेक्टर कैसे काम करता है, यानी डीमॉड्यूलेशन सर्किट,
ओके, ये हमने देखा कि प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर एम डी सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डीमॉड्यूलेशन का, कि एक डायोड डी लगाया है, डायोड डी क्या करेगा, अपर साइड बैंड में कंडक्ट होगा, लोअर साइड बैंड को ब्लॉक कर देगा। वो कनेक्शन ही ऐसा किया है कि वो लोअर साइड बैंड के लिए क्या होता है, रिवर्स बायस, बट अपर साइड बैंड में क्या करता है, वो फॉरवर्ड बायस होता है। उसके बाद कैपेसिटर कनेक्ट किया एंड रेजिस्टर आर है हमारे पास। कैपेसिटर सी का काम क्या है, इट विल प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ टू द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है हमारा, कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल यहाँ से बाईपास हो जाएगा, बट वेयर एज दिस कैपेसिटर एक्ट्स एज अ व्हाट, हाई इम्पीडेंस टू द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल कैपेसिटर से नहीं जाएगा, वो अपीयर कहाँ पे होगा, रेजिस्टर आर के अक्रॉस। सो दैट बिकम्स द डीमॉड्यूलेशन सर्किट। बट इसका ये ड्रॉबैक है सर्किट का कि आउटपुट में ऑसिलेशंस होते हैं, और वो ऑसिलेशंस हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। और हम क्या नहीं कर सकते, उसको और यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसको फिल्टर नहीं लगाया तो भी प्रॉब्लम होगा। ये सिंपल एक डायोड डिटेक्टर है जिसका काम यही है कि डीमॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करना। बट वेयर एज प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर ये डिफरेंट है थोड़ा सा, और हमें क्या देखना है, एजीसी देखना है, दैट इज़ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। और उसके बाद हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, और ये लास्ट देखना है कि सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल का एक्सटेंशन क्या है। ओके, तो 2-3 पॉइंट्स बचे इस लेक्चर, इस यूनिट में हमें 2-3 पॉइंट्स देखने हैं। एक तो प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर 1, एजीसी 2, एंड लास्टली दिस सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स एक्सटेंशन। ओके, तो we should stop here today because our time limit is what, not more than 30 minutes. So any questions, any queries, you can ask me. I think it will require 2 to 3 lectures more to complete this unit, because my speed is very slow. I am not hurrying anything, I am not avoiding anything, I have not skipped anything. तो कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? कुछ क्वेश्चंस है क्या? Only 2 students are present today. I think Nikhil is present, Parvez is present. Okay. So no questions. So I will end today's session here, and tomorrow we will meet on the same time, that is our standard time as per the timetable. And tomorrow we will see the practical diode detector and automatic gain control. We will try to cover automatic gain control, but see if time permits we go for the last topic also. But I still feel we require 2 lectures to complete this unit. Means today is the Tuesday, Wednesday, Thursday को ये complete हो जाएगा unit. फिर Friday से हम अलग 5th unit start करेंगे. Okay, so thank you, we will meet again.